Okay, students, this video is now in continuation with the chapter Control and Coordination. We have already done two videos in this series, one on based on hormones, and in the previous video we had done all about the nerves and the neurons that we have studied. This video will be about the brain, its functions, and the different types of control and coordination which are found in the plants. So first of all, before we proceed to the structure of the brain, we would first do as to what is the arrangement of neurons. In the previous video we had done that neurons, they are arranged one after the another, that is, the terminal endings of one, they are quite close to the dendrites of the other neuron, and these neurons, they are arranged in a series, right? The nerve impulses, they start traveling, yeah, they are perceived by the dendrites of the sensory neurons, then they travel from sensory neurons to the nerve endings of the first neuron. First neuron's nerve endings, they are quite close to the dendrites of the uh, second neuron. So now what happens is ki there the dendrites and the nerve endings of the previous neuron, they are not completely joined, they are very close to each other, and this region where one neuron ends and the other neuron starts is called as synapse. So synapse is basically the minute gap between the terminal endings of one neuron and the dendrites of the next neuron. This synapse has, if we enlarge the last portion of the nerve ending of this neuron, we have something like this. This end portion will have certain mitochondria, and then there are certain small vesicles, bubble like vesicles, which are found in the terminal endings. इन vesicles के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होती है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है कि इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन नंबर 1 टू द डेंड्राइट ऑफ द न्यूरॉन नंबर 2 तक इसको ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली इन वेसिकल्स के अंदर पाया जाता है। ये वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर को लेकर यहाँ एंड तक आएंगे, फिर ये वेसिकल्स जो हैं ये लास्ट की मेम्ब्रेन के साथ मर्ज करेंगे, and the neurotransmitter will start moving from here and it will reach to the dendrite of the second neuron. दोबारा बता देती हूँ कि एक वेसिकल के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब पहले न्यूरॉन के लास्ट में जो टर्मिनल एंडिंग्स है वहाँ पर आती हैं, तो फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये बाहर आएगा, माइन्यूट गैप को या साइनैप्स को क्रॉस करते हुए ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट तक पहुंच जाता है, और नर्व इम्पल्स या जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो जाती है। सो इन द नटशेल द ट्रांसफ़र ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम one neuron to the other neuron takes place through the with the help of neurotransmitter across the minute gap which is there between them. This minute gap is called as synapse, और humans के अंदर जो neurotransmitter पाया जाता है that is acetylcholine. ठीक है, so the neurons are not properly connected. There is a very minute gap between the terminal portion of one axon and the starting of the other neuron, and this minute gap is called as synapse. जो synapse है they will be
it is responsible for transmission of nerve impulse from one to another. So the receptor or the sensory neuron present in the body receives the stimulus. The stimulus then generates a message in the form of electrochemical impulse. यहाँ पर स्टिमुलस को परसीव किया जाता है और फिर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द यहाँ से सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल एंडिंग्स और टर्मिनल एंडिंग्स के बाद साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से इम्पल्स जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगी। नेक्स्ट न्यूरॉन में जाकर यहाँ पर जो तुम्हारी डेंड्राइट्स है उनके अंदर वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द साइनैप्स और द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द synapse takes place. Now we move on to the different parts of the brain, and when we come to the different parts of the brain, तो अगर हम एक brief outline बनाएं तो हमारा जो nervous system है वो दो हिस्सों में divided है, जैसे हमने पहले किया, एक central nervous system और एक peripheral nervous system। central nervous system के अंदर हमारा आता है brain और spinal cord, और जो हमारा peripheral nervous system है उसमें sympathetic autonomic nervous system, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हमारा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम आता है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा मेन पार्ट है ब्रेन, और ब्रेन से के साथ में हमारी जुड़ी हुई है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्टडी करें अपने ब्रेन को, तो सबसे पहले तो ब्रेन का डायग्राम बनाना है। तो ब्रेन का डायग्राम बनाने के लिए आपको एक ओवल शेप स्ट्रक्चर बनाना है, रफ। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको उबड़ खाबड़ तरीके से आपने इसको बना देना है। ठीक है, और उबड़ खाबड़ तरीके में बनाने के बाद में आप इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स बनाएंगे या स्कल बनाएंगे। तो पहले आती हैं 3 मेम्ब्रेन्स। इन मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस, और मेनिंजेस के ऊपर हमारा जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम मतलब आपका जो स्कल है, स्कल को हम लोग क्रेनियम भी बोलते हैं। तो ये पर्पल कलर का आपका क्रेनियम। क्रेनियम के नीचे यानी कि स्कल के नीचे हैं 3 मेम्ब्रेन्स। वो मेम्ब्रेन्स जो हैं दे प्रोटेक्ट द ब्रेन, और इन 3 मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। तो ये है हमारा स्कल, और स्कल को हम क्रेनियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब अंदर जो ग्रीन कलर का हमारा ब्रेन है उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे कि पहले एक ओवल शेप बनाई, ओवल शेप को फिर आपने थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ कर देना इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमाएंगे, और यहाँ पर आप एक इस प्रकार से मिड ब्रेन बनाएंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर ये ख़त्म होगा वहाँ पर आप 2 छोटी छोटी नॉब्स बनाएंगे, और इसको आप डबल लाइन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर एक जिगजैग लेक जैसा स्ट्रक्चर बना दो। ये बनेगा हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, ये हिस्सा है हमारा पूरा फोर ब्रेन, और इसके अंदर आप इस प्रकार से
छोटे छोटे ग्रूव्स बना दो। ये है हमारा फोरब्रेन। फोरब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेरिब्रम। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जहाँ पर ये लेक, ये चीज़ ख़त्म होती है, वहाँ से आपने पहले एक लाइन ऐसे बनानी है और यहाँ से एक इस प्रकार से लाइन बनानी है, ठीक है। और फिर इसकी तरफ, पीछे की तरफ हम बनाएंगे एक पत्ता जैसे। I'll use some other color to do that. This is your cerebellum. ये हिस्सा है तुम्हारा पॉन्स और ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो I'm just shading them to make things little clear to you so that you don't get confused, ठीक है। सो हमारा ये जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन जो है, ये हमारा बनता है हाइंड ब्रेन, पीछे का ब्रेन। ये है हमारा मिडिल ब्रेन यहाँ पे, और आगे का हिस्सा जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द फोर्थ ब्रेन। ब्राउन कलर की जो 3 लाइनें मैंने बनाई हैं, दे आर मेनिंजेस। ये मेम्ब्रेन्स हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। और पर्पल कलर का जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ स्कल। स्कल मतलब क्रेनियम, खोपड़ी जिसको आप आम भाषा में बोलते हो। अब ये जो मैंने चीज़ बनाई है, दिस इज़ योर पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी की ग्लैंड के साइड में ये जो है, दिस इज़ योर हाइपोथैलेमस। ये हमारे ग्लैंड्स हैं जो ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोटी तौर के ऊपर आपका फ्रंट का हिस्सा है फोर ब्रेन, ये वाला बीच में है आपका मिड ब्रेन, पीछे का हिस्सा दैट इज़ योर हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर ये जो ब्राउन कलर का है, दिस इज़ कॉल्ड एज सेरिबेल्लम। ये एक ही वर्ड है, सेरिबेल्लम। ये लंबा सा जो है, दिस इज़ कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इस चीज़ को हम बोलते हैं पॉन्स, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर आपके ब्रेन का एक आउटर स्ट्रक्चर है। इसको आप थोड़ा सा डिफाइन कर दो बाय ड्राइंग दीज लाइंस, ठीक है। सो ये एक रफ डायग्राम या एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन है। अब इस ब्रेन के बारे में, सो फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट इट इज़ द वाइडेस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज़ the main coordinating center of our body. Brain is situated inside the cranial cavity or the skull of the head region. जो बोन्स जो क्रेनियम की होती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ये अंदर से ब्रेन जैसे डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेन है वो एक बहुत सॉफ्ट ऑर्गन होता है जिसका कि वेट अराउंड 1.2 से 1.4 किलोग्राम्स होता है। और इसको प्रोटेक्ट करती हैं, ब्रेन को सराउंड करती हैं 3 मेम्ब्रेन्स विच आर कॉल्ड एज द मेनिंजेस। और मेनिंजेस जो हैं ये प्रोटेक्ट करके, और इनके जो मेनिंजेस के बीच में स्पेस है, इट इज़ फिल्ड विद द लिक्विड विच इज़ कॉल्ड एज सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड। और ये जो स्पेस होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज द सेरिब्रोस्पाइनल स्पेस। सो ये जो स्पेस है, दिस इज़ सेरिब्रोस्पाइनल स्पेस। और जो लिक्विड बीच में भरा हुआ होता है, दैट इज़ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
ठीक है। सेरिब्रोसाइनल फ्लूइड एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और हमारे ब्रेन को मॉइस्ट रखने का काम जो है वो करता है, ठीक है। उसके बाद ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम भी करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब फोर ब्रेन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा जो फोर ब्रेन है, दिस फोर ब्रेन इज़ बेसिकली कॉल्ड एज सेरिब्रम। ये जो पार्ट है हमारे दिमाग का, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स विच इज़ ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड डायंसेफेलॉन। जो तुम्हारी ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं ये हमारे साइड का जो मतलब हमारे ब्रेन का जो साइड होता है उसमें हमें ये नज़र आती हैं, और ये हमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यानी कि आपके नोज़ के रिसेप्टर्स में को जो हैं वो रिसीव करती हैं। उनमें से जितने भी सिग्नल्स आते हैं स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल के, उनको वो रिसीव करती हैं। उसके बाद हम आते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल हेमिस्फेयर हाफ मून टाइप वो होते हैं। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर की शेप में होते हैं ऑब्वियसली। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जो होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट योर, जिसको हम आमतौर पर दिमाग बोलते हैं, दिमाग इन द सेंस दे आर मोर involved in the processes of thinking, memorizing, reasoning, logically analyzing something, ठीक है। और हमारी मेमोरी जो है वो भी तुम्हारी सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर पाई जाती है। सो बेसिकली जो तुम्हारी सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं इनका जो मेन काम होता है दैट इज़ टू सर्व एज अ सेंटर टू एनालाइज थिंग्स, टू मेमोराइज थिंग्स। आपकी जो पुरानी जो आपकी मतलब जो भी आपने याद करके रखा है और उसको किस जगह पे कब यूज़ करना है, किसी भी सिचुएशन का एनालिसिस जो होता है, जो हमारी थिंकिंग पावर होती है, वो सारी की सारी ये जो पावर्स हैं दे आर मेनली इन योर सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, या जो सेरिब्रम है वो उसके साथ में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम आते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करना है। आपको फंक्शंस ऑफ द फोर ब्रेन या सेरिब्रम पता होने चाहिए। जो तुम्हारा मिड ब्रेन होता है वो बेसिकली हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस हमने पिछले वीडियो में किया था। हमारे हेड, नेक और ट्रंक के जो विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलस को रिसेप्शन, मतलब अगर आपको कोई चीज़ जो है वो सुनाई दी, जैसे मैंने अगर आवाज़ दी किसी को तो उसने अपना सिर इधर को किया, तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि एक ऑडिटरी स्टिमुलस के लिए था। आवाज़ का जो है वो तुम्हारा एक ऑडिटरी स्टिमुलस है, और उसके रिस्पॉन्स में जो आप सिर हिला के उस तरफ को घुमाते हो वो आपका रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स दैट ऑडिटरी स्टिमुलस। तो ये सारी जो रिस्पॉन्स हैं आपके विजुअल मतलब देखने वाले जो दिखाई देते हैं स्टिमुलस, और जो तुम्हारे ऑडिटरी या सुनाई देते हैं स्टिमुलस, उनको एनालाइज करके जो रिएक्शन देना है वो आपका आता है, वो उनको कंट्रोल करता है आपका मिड ब्रेन। और ये हमारी आई मसल्स की मूवमेंट को भी जो तुम्हारा मिड ब्रेन है वो कंट्रोल करता है, यानी कि आपके प्यूपिल का साइज़ का बड़ा होना, छोटा होना, आपके जो लेंस का थिकनेस है, फोकल लेंथ है, उसका बड़ा होना या कम होना, ये सारा जो है आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन जो है वो बेसिकली आपके सेंसरी ऑर्गन्स के स्टिमुलस को एनालाइज करके उनको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। उसके बाद जो हमारा हाइंड ब्रेन है वो हमने तीन हिस्सों में बांटा है। दिस इज सेरिबेलम, दिस इज पॉन्स एंड दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जो तुम्हारा सेरिबेलम है वो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है और हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखता है। मतलब चलते चलते हम एकदम से गिरते नहीं हैं, चलते चलते हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम सीधे चल रहे हैं। ये सब एक बैलेंसिंग और पोस्चर मेंटेनेंस का काम है जिसको कि सेरिबेलम जो है वो ओवरलुक करता है, ठीक है, या उसको वो कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये सेरिबेलम के ये वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, और ये हमारी बॉडी के अंदर रेट ऑफ हार्ट बीट, हमारी ब्रीदिंग मूवमेंट्स, हमारी एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, स्वेलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, मतलब तुम्हारी बॉडी के जितने वाइटल फंक्शंस हैं, इंटरनल बॉडी जो तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए चाहिए, मतलब ब्रीदिंग और हार्ट से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे वाइटल इनवॉलंटरी एक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जो पॉन्स होता है इट कंट्रोल सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। सो ये तो थे फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। मोटे तौर के ऊपर आपको हर पार्ट के
फंक्शन को मेमोराइज करना है, रट्टा लगा के लर्न करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी बुक्स के अंदर एक डिफरेंस दिया हुआ है सेरिबरम और सेरिबेलम के अंदर। ये डिफ्रेंशिएट आप ज़रूर लर्न कर लें, पेपर के अंदर बहुत बार इस चीज़ को पूछा जाता है। तो सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का हिस्सा है, सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। जो सेरिब्रम है वो 80% ऑफ द ब्रेन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो सेरिबेलम है इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली अबाउट 12% ऑफ द ब्रेन। ये जो है इसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये फ्रंटल पार्ट में होता है, ये पोस्टीरियर पार्ट में होता है, ठीक है। इसके अंदर इसका जो मेन काम है सेरिब्रम का वो इंटेलिजेंस और मेमोरी है, और ये स्पीच, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग और इंटेलिजेंस के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जबकि जो सेरिबेलम है वो आपकी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करता है, और सेरिबेलम आपकी बॉडी में डिफरेंट मस्कुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो एक बैलेंस्ड वे में खड़े होकर या बैठकर कर सकें, ठीक है। सो दिस डिफरेंस यू शुड नो, एंड दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेन। अब ब्रेन के बाद ये जो एक्सटेंशन आती है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा की जो एक्सटेंशन है, यही स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसमें से कुछ नर्व्स निकलती हैं, और ये जो नर्व्स होती हैं इन नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, और उस स्पाइनल कॉर्ड में से धागों जैसी नर्व्स निकलती हैं 31 पेयर्स, जो कि आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाके कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और ये जो है जो ये नर्व्स हैं इनका जो मेन काम है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स का जो मेन काम है वो है सेंसरी और मोटर इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, एंड इट एक्ट्स एज अ सेंटर फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमने पढ़ा था कि वो ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस एक्शन है जहाँ पर कि ब्रेन को ओवरबर्डन ना करके सीधी जो डायरेक्शंस टू डू द वर्क है दैट आर टेकन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली आपकी नर्व्स आती हैं, और आपकी जो नर्व्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं क्रेनियल नर्व्स, जो कि दिमाग से शुरू होकर दिमाग में ही मतलब आपके हेड रीजन में ही जाती हैं, और हेड रीजन से मैसेजेस लेकर वापस ब्रेन तक जाती हैं। तो इसीलिए हम इनको क्रेनियल, मतलब क्रेनियम से निकली यानी कि ब्रेन से निकली, हेड के पोर्शंस में ये डिफरेंट जगह पे जाकर अपना काम करती हैं, और मैसेजेस को वापस फिर ये हेड तक ब्रेन तक लेके जाती हैं। तो इन जो ब्रेन नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, एंड देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, मतलब दिमाग में से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, जो कि सिर के डिफरेंट, जैसे आपकी जॉज की मूवमेंट है, आपकी टंग की मूवमेंट है, आइज़ की मूवमेंट है, ईयर्स, आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, मतलब जो आइज़ की ब्लिंकिंग करनी है, आपने हंसना है तो आपकी मसल्स किस तरीके से स्ट्रेच करेंगी, आपके नोज़ के अंदर की सारी मूवमेंट्स, आपके एयर के अंदर की सारी जो भी फंक्शंस हैं वो सारी कंट्रोल जो होती हैं वो क्रेनियल नर्व से होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल नर्व्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, 31 पेयर्स होती हैं, और ये पूरी बॉडी के अंदर जाती हैं, पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस ब्रेन से मैसेजेस बॉडी तक, और बॉडी के मैसेजेस ब्रेन तक लाने का काम करती हैं। और उसके बाद हमारी तीसरी जो नर्व्स होती हैं, तो स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, और तीसरी हमारी जो नर्व्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज द विसरल नर्व्स। विसरल मतलब विसरा आपका इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को विसरल नर्व्स बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जो ब्रेन है वो आपके हार्ट की बीट को, आपकी स्टमक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स को, कंट्रैक्शंस को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को, वॉल्व्स के खुलने को, बंद करने को, आपकी किडनीज के फंक्शन को, सबको कंट्रोल कर रही हैं। तो वो नर्व्स जो कि इंटरनल ऑर्गन्स तक मैसेजेस लेके जाती हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स में से मैसेजेस को वापस ब्रेन तक लेके जाती हैं, उन नर्व्स को हम लोग विसरल नर्व्स बोलते हैं। उसके बाद आपका ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग ये जो है दिस सिस्टम ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली एंड इनवॉलंटरी, और इसके अंदर मेनली हमारा विसरल नर्व्स आती हैं। ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता, इसीलिए हम इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो तुम्हारी क्रेनियल नर्व्स हैं या वॉलंटरी पेरिफेरल नर्व्स जो हैं, जो उसके अंदर तुम्हारी कुछ हद तक आपकी स्पाइनल नर्व्स आती हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली आपको विसरल नर्व्स के बारे में लिखना है, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल्स में आपसे नहीं पढ़ा जाता। तो जो तुम्हारा, अब हम अगर डिफरेंस करें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या फ़र्क है, तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अगर वो
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को या रेट ऑफ हार्ट को इंक्रीज करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक उसका उल्टा काम करेगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा और रेट ऑफ हार्ट बीट को भी कम करेगा। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब कि वो जो उनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो उनको डायलेट कर रहा है। अगर जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट मतलब उनको फैला रहा है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो उसको कम कर रहा है। तो ये जो इनवॉलंटरी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कि बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स का जो काम होता है, उनको जो रिलेटेड नर्वस सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो हिस्से होते हैं। जो काम सिंपैथेटिक कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक उसका उल्टा काम करता है, क्योंकि अगर हार्ट ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसको साथ के साथ रिलैक्स भी करना है। तो कॉन्ट्रैक्शन का काम अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देख रहा है, तो रिलैक्सेशन का जो काम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको चेक करेगा। अगर जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स को टाइट करने का जो काम है, अगर वो सिंपैथेटिक देख रहा है, तो उनको डायलेट मतलब उनको रिलैक्स करने का जो काम कर रहा है वो आपका कौन कर रहा है, वो आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो ये अंदर ही अंदर आपकी बॉडी के अंदर सारी जो काम होते हैं, और ऑब्वियसली ब्रेन इनको कंट्रोल कर रहा है, तो ब्रेन इनको कंट्रोल करने के लिए विसरल नर्व्स का इस्तेमाल करता है। और विसरल नर्व्स को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनती हैं नर्व्स, और कुछ विसरल नर्व्स जो होती हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। तो इस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बीच में हमें फ़र्क पता लगता है। तो बेसिकली हमारा जो दिमाग है, जैसा कि हमने पहले किया, हमारा नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइन आती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें कि अंदर हमारी नर्व्स आती हैं। और इसके अंदर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक मतलब विस्ट्रल नर्व से बना हुआ, जो कि आपकी बॉडी के अंदर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा है। उसमें दो तरीके की नर्व्स होंगी, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं नर्व्स, और कुछ नर्व्स जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं। तो जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करते हैं उनको अपोज या उनको अनडू करने का जो काम है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी स्पाइनल या क्रेनियल नर्व्स को भी हम कर लेते हैं। जैसे अगर मेरे को अपना हाथ उठाना है, तो हाथ उठाने के लिए जो ब्रेन से मेरे को इंस्ट्रक्शन आनी है मेरी मसल्स को कि आप किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि हाथ उठा लिया जाए, तो ये सारे मैसेजेस जो हैं वो वॉलंटरी है। मेरा मन है तो मैं हाथ उठाऊंगी, मेरा मन है तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगी, लेकिन हाथ उठाने का जो मेरा मन है वो मैसेज ब्रेन तक पहुँचाने का काम हमारा वॉलंटरी नर्वस सिस्टम करता है। और ब्रेन फिर कौन सी मसल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि हाथ जो है वो उठेगा, वो भी जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है उसकी नर्व्स ये काम करती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेन एंड इट्स फंक्शनिंग। Then we move on to the control and coordination system in the plants. तो प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है उसके अंदर हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं, एक है हमारा ट्रॉपिज्म और दूसरे हैं हमारी नास्टीज़। तो ट्रॉपिज्म्स और जो नास्टीज़ होते हैं बेसिकली ये मूवमेंट्स होती हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलस। मतलब अगर बाहर सूरज की रोशनी है, सन कम्स अप, तो प्लांट उस टाइम पे कैसे बिहेव करेगा, तो वो किसी तरीके से अपनी मूवमेंट से ये बताएगा कि ओके आई एम रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस ऑफ सनलाइट। देन एट टाइम्स वाटर के स्टिमुलस को प्लांट किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो बेसिकली प्लांट के अंदर दिमाग नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सेस को इमीडिएटली शो नहीं करता है, ये रिस्पॉन्सेस बड़ी स्लो होती हैं बट एट द सेम टाइम ये होती हैं। और डिफरेंट स्टिमुलस के लिए प्लांट के पार्ट्स किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट रिएक्शन देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म जो होती हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट्स का मतलब ये है कि जिस तरफ स्टिमुलस है, जो मूवमेंट है प्लांट की वो उस तरफ होगी। अगर आप किसी पौधे को खिड़की के पास रख देते हो तो हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि जिस तरफ से रोशनी आती है पौधे की जो ब्रांचेज हैं वो उस तरफ को मुड़ जाती हैं। सो प्लांट हैज़ मूव्ड टुवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ सनलाइट। सो दिस इज़ अ response to the stimulus of sunlight, and this type of movement which is towards the direction of the stimulus or opposite to the direction of the stimulus, these directional movements they are called as the tropisms। और जो tropisms होते हैं वो 4 या 5 प्रकार के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द स्टिमुलस।
अगर आपका स्टिमुलस सनलाइट है या कोई भी लाइट है, देन इट इज़ कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म दो प्रकार के होंगे, एक होंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और एक होगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो जो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब ये है व्हेन द प्लांट या कोई भी बॉडी पार्ट अगर टुवर्ड्स द स्टिमुलस मूव करता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म किसी भी केस में। और अगर इट मूव्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, देन इट इज़ कॉल्ड एज द नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। तो सन के केस में है तो वो फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। तो सन की तरफ अगर कोई चीज़ मूव करती है, देन इट इज़ सेड टू बी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और अगर वो सन से दूर मूव करती है, देन इट इज़ सेड टू बी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम एक खिड़की के सामने अगर हम पौधा रख दें, तो कुछ दिन बाद जो पौधे की टहनियाँ हैं वो धीरे धीरे सन की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो जो स्टेम होती है, इट इज़ सेड टू बी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। लेकिन एट द सेम टाइम जो रूट्स होती हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाती हैं, वो अंधेरे की तरफ जाती हैं। तो बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट, देयरफॉर रूट्स आर सेड टू बी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम वाटर लेते हैं, तो वाटर के केस में जो ट्रॉपिज्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो अगर मैं एक गमले को इस प्रकार से लूँ और इस गमले में अगर मैं पानी का जो मग है वो यहाँ पे रख दूँ, तो हम देखेंगे जो रूट्स हैं वो पानी की तरफ मूव करेंगी। सो बिकॉज द रूट्स आर मूविंग टुवर्ड्स वाटर, देयरफॉर रूट्स आर सेड टू बी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, एंड स्टेम इट विल मूव अवे फ्रॉम द वाटर, देयरफॉर स्टेम इज सेड टू बी नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है। उस तरीके से एक और ट्रॉपिज्म होता है फॉर ग्रेविटी। रूट्स जो हैं दे मूव टुवर्ड्स द ग्रेविटी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और जो तुम्हारी स्टेम्स होती हैं दे मूव एंटी ग्रेविटी, मतलब वो ऊपर की तरफ जाती हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फ़र्क ये होता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ होती है, द ग्रोथ इज सेड टू बी पॉजिटिवली ट्रॉपिक, और अगर ग्रोथ इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, देन इट इज सेड टू बी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। एक और प्रकार का जो ट्रॉपिज्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म इज फॉर टच। अगर आप एक टहनी ले लो, अगर आप एक डंडा ले लो और उसके साथ में अगर आप एक बेल को चढ़ाना शुरू करते हो, तो बेल की जो स्टेम है वो टहनी के साथ साथ मुड़ मुड़ कर ग्रो करती है। तो यहाँ पर टच जो है वो एक प्रकार की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है। तो वो उसको मैं अभी 1 मिनट में समझाती हूँ। तो थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर टच होता है, और इसके अंदर आपके नॉर्मली क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो होते हैं, आपके नॉर्मली क्लाइंबर्स हैं जैसे कि मनी प्लांट वगैरह है, वो इसके अंदर एग्जांपल्स आती हैं। तो हर ट्रॉपिज्म में आपको पॉजिटिव नेगेटिव ट्रॉपिज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कोई एक्टिविटी है तो उसको लर्न करना है, और आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि चीज़ नेगेटिव है। दूसरा आता है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म एक केमिकल के लिए, इसको मैं समझाने के लिए बता देती हूँ कि अगर आप पॉलिनेशन के टाइम के ऊपर अगर हम एक ओवरी का डायग्राम बनाएं, तो जब एक पॉलन ग्रेन एक स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करता है, तो जो तुम्हारा ओवरी होती है वो एक खास प्रकार का केमिकल जो है वो सिक्रीट करती है, और यहाँ जो पॉलन है वो बर्स्ट करके उसमें से एक ट्यूब निकलती है विच इज़ कॉल्ड एज पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब इस केमिकल की खुशबू की तरफ ट्रैवल करना शुरू करती है या ग्रो करना शुरू करती है। तो जो तुम्हारे पॉलन ट्यूब है दैट इज शोइंग अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल विच इज सिक्रीटेड बाय द ओवरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन या जब पॉलिनेशन के बाद। तो पॉलिनेशन के टाइम के ऊपर पॉलन जो है उसमें से एक पॉलन ट्यूब निकलेगी एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग टुवर्ड्स द केमिकल विच इज सिक्रीटेड फ्रॉम द ओवरी। तो यहाँ पर एक केमिकल स्टिमुलस के लिए जो ग्रोथ है वो हो रही है, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म इज कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिज्म।
ट्रॉपिज्म, और ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रॉपिज्म्स में क्या ऐसा, प्लांट के अंदर ऐसा क्या होता है कि ट्रॉपिज्म होता है। सो लेट अस टॉक अबाउट स्टेम। अब जो हमारी स्टेम होती है उसके अंदर एक प्रकार का केमिकल पाया जाता है या हार्मोन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन। और जो ऑक्सिन होता है उसको लाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इट इज़ नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, तो अगर मैं ये स्टेम लेती हूँ तो जो स्टेम का हिस्सा लाइट की तरफ है, जो ऑक्सिन है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके, यहाँ पर ये जो ग्रीन ग्रीन में दिखा रही हूँ, ये सपोज करो ऑक्सिन जो है इस तरफ से लाइट आ रही है, ऑक्सिन जो है वो इस तरफ जाकर जमा हो गया। अब ऑक्सिन का मेन काम होता है सेल एनलार्जमेंट। तो वो क्या करेगा कि जिस तरफ वो आ गया है उस तरफ के सेल्स को वो एनलार्ज करना शुरू कर देगा और इस तरफ के जो सेल्स हैं वो छोटे रह जाएंगे। अब क्या हुआ, अगर इधर के सेल लंबे होने शुरू हो गए तो स्ट्रेच करना शुरू हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है स्ट्रेच करेगा, तो ये स्ट्रेच करके अंदर की बाहर की तरफ ऐसे झुक, ये स्ट्रेच कर रहा है, अंदर का इतना स्ट्रेच कर नहीं रहा, तो ये अंदर की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा और ये जो है ये स्ट्रेच कर करके ऐसे करके आ जाएगा। तो तुम्हारी जो स्टेम है वो इस प्रकार से धीरे धीरे लाइट की तरफ बेंड करना शुरू कर देती है। तो हमने ये देखा कि लाइट हैज़ गॉन, द स्टेम हैज़ बेंड टूवर्ड्स द लाइट। तो इस तरीके से जो ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म में ऑक्सिन प्लेज अ मेन रोल। ऑक्सिन इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, इट विल मूव अवे फ्रॉम द लाइट, and when it moves away from the light it will start the growth or cell enlargement in the area जहाँ ये जाके डिपॉजिट हो गया। इस एरिया में जाके ये डिपॉजिट हो गया, इस तरफ के एरियाज़ को ये लंबा करेगा, सेल्स को लंबा करेगा। जब यहाँ के सेल लंबे होंगे तो वो स्ट्रेच करेंगे, ये एरिया स्ट्रेच करना शुरू हो जाएगा, ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपैरेटिवली। तो जो स्ट्रेच, इस तरीके से जो स्टेम है वो बेंड करना शुरू कर देती है, तो धीरे धीरे जो स्टेम है वो लाइट की तरफ चली जाती है। और यही केस बाकी सारे ट्रॉपिज्म्स में भी होता है। अगर आप एक क्रीपर को लेते हो तो जो तुम्हारा ऑक्सिन है वो भी नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। तो ये अगर आपकी डंडी है और ये आपकी टहनी है, तो टहनी जिस जगह पे डंडी को टच करेगी वहाँ पर उससे दूर ऑक्सिन चला जाएगा, और ऑक्सिन जब दूर चला गया तो यहाँ के जो सेल्स हैं वो स्ट्रेच करके बेंड करेंगे। तो जब ये बेंड करेंगे तो ये जो टहनी है वो इस तरीके से इसके इर्द गिर्द लिपटती जाएगी, ये वाला हिस्सा स्ट्रेच करके लंबा होता जाएगा और इस तरीके से ये पूरी स्टेम के इर्द गिर्द जो तुम्हारी टहनी है वो लिपटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हिस्सा स्टेम से दूर है वो लंबा होता जा रहा है और लंबा होके वो इस तरीके से कॉइल करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जो तुम्हारा क्लाइंबर है वो एक सपोर्ट के साथ में टच, क्योंकि टच इधर हो रहा है ना, टच मीन्स थिग्मोट्रॉपिज्म, तो टच जहाँ किया ऑक्सिन उससे दूसरी तरफ चला गया और दूसरी तरफ जाने से उसने इधर के सेल्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ये आपकी जो स्टेम है वो इस सपोर्ट के इर्द गिर्द लिपटती हुई लंबी होती चली जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉपिज्म। द लास्ट टॉपिक विच इज़ लेफ्ट इज़ द नास्टी। नास्टी जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये है कि अभी तक तो जितने हमने स्टिमुलस पढ़े वो सब डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस्ड है, जिधर टच किया ग्रोथ उसके ऑपोजिट है, जिधर से केमिकल का स्टिमुलस आया ग्रोथ उसकी तरफ हुई। सो जो ट्रॉपिज्म्स हैं ये स्टिमुलस की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, जबकि जो नास्टी होती है वो उसमें जो भी रिस्पॉन्स आता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका जो है इसका कॉमन नेम है टच मी नॉट, छुई मुई जिसको बोलते हैं। तो इसके पत्ते जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे गुलमोहर के पत्ते होते हैं वैसे। तो आप इसको कहीं से भी टच करो ये पत्ते इमीडिएटली श्रिंक कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ से टच करो या यहाँ से टच करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पत्ते हैं वो हमेशा ही श्रिंक करके टहनी के साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन इज़ नॉट डिटरमाइनिंग कि जो रिस्पॉन्स है वो किस तरफ को जाएगा। तो जब आपका रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज़ नॉन डायरेक्शनल देन दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज द नास्टी। और जो तुम्हारी नास्टी होती है आपकी बुक के अंदर थिग्मोनास्टी ही है, विच इज़ मोर कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ मिमोसा प्यूडिका।
अब मिमोसा पुडिका में क्या होता है कि अगर मैं मिमोसा पुडिका की एक टहनी को ड्रॉ करूं और उस टहनी में ये टहनी है और उसकी ये एक पत्ती है, अगर मैं पत्ती को ड्रॉ करूं तो पत्ती के जो बेस होता है वहाँ पे एक ये स्वेलिंग होती है, ये एक पत्ती है, ये दूसरी पत्ती है एंड सो फोर्थ। अब ये पत्तियों ने श्रिंक करना होता क्या है कि यहाँ पर एक स्वेलिंग होती है विच इज़ कॉल्ड एज पल्वाइनस, और ये पल्वाइनस जो होती है इट इज़ फिल्ड विद वाटर। जब मैं इसको टच करती हूँ पत्ती को तो क्या होता है कि ये जो पानी होता है इट विल गो इनटू द स्टेम, वो मतलब रिट्रीट कर जाता है, पानी पीछे की तरफ आ जाता है, वो स्टेम में आ जाता है। अब ये जो स्वेलिंग है इसने इस पत्ती को स्ट्रेट रखा था, मतलब इट वाज स्टिफ, इट वाज रिजिड और इट वाज टर्जिड बिकॉज ऑफ दिस पल्वाइनस, द वाटर प्रेजेंट इन दिस पल्वाइनस। जैसे ही मैंने इसको टच किया इसमें एक इम्पल्स बनती है, एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है जिससे कि जितना भी इन स्वेलिंग के अंदर, पल्वाइनस के अंदर जितना भी पानी था वो सारा का सारा पानी जो है वो स्टेम के अंदर आ जाता है। तो ये श्रिंक कर जाएगी, जैसे ये श्रिंक करेगी ये इस पत्ती को स्टिफ नहीं रख पाएगी और जो पत्ती है वो फटाक से इसके ऐसे से स्टेम के साथ में इस तरीके से आके जुड़ जाती है। तो उस पर क्या होता है कि तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ इसमें से पानी बिल्कुल निकल गया, ये पानी निकल गया और पानी निकलने की वजह से अगले उसमें क्या होगा कि ये जो पत्ती है वो बिल्कुल स्टेम के साथ में जुड़ जाएगी। फिर थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि वापस जो पानी है वो इधर आना शुरू हो जाता है। तो जब मतलब अपना हाथ आप उठा लेते हो, ये जो पानी है वापस पल्वाइनस में आएगा, पल्वाइनस क्या होगा फिर से स्वेल कर जाएगा और जैसे ही पल्वाइनस स्वेल करेगा आपकी जो मिमोसा पुडिका की जो लीफलेट है वो फिर से खिल जाएगी या वो फिर से स्टिफली हो जाएगी। तो अगर आप टच नहीं करोगे तो पत्तियां ऐसी, अगर आप टच करोगे तो पत्तियां जो है वो इस प्रकार से हो जाती हैं। और वो क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द वाटर मूवमेंट इन केस ऑफ पल्वाइनस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट थिग्मोनास्टी एंड ये थिग्मोनास्टी ही नास्टीज में अंदर सिर्फ आपके सिलेबस में थिग्मोनास्टी है। तो आप लोगों को ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हर उसकी ट्रॉपिज़म के बारे में बेसिक डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोट्रॉपिज़म क्या होता है, तो अगर आप इसको एक रीड करते हो आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द प्लांट हार्मोन्स। वी हैव डेल्ट विद प्लांट हार्मोन्स in the previous videos, and then there is one more topic in your book which is photoperiodism. Photoperiodism is the वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट वो किस तरीके से डे लेंथ को रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ फूल हैं वो सिर्फ गर्मियों में खिलते हैं, कुछ फल जो हैं वो सिर्फ गर्मियों में होते हैं और कुछ फूल सिर्फ सर्दियों में खिलते हैं। तो कुछ फूल सर्दियों में क्यों खिलते हैं? क्योंकि उनको खिलने के लिए जितनी ड्यूरेशन की सनलाइट चाहिए वो सनलाइट उनको जो है वो मिलती है सर्दियों में। मतलब अगर उनको 4 घंटे की सनलाइट चाहिए तो वो 4 घंटे की सनलाइट लेने के बाद ही खिलेंगे। अगर आप उनको 6 घंटे की या 8 घंटे की सनलाइट दे दोगे वो उस टाइम पे नहीं खिलेंगे। तो फोटोपीरियोडिज्म इज द डिफरेंट चेंजेस विच टेक इन द प्लांट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द ड्यूरेशन ऑफ द डे। दिस इज कॉल्ड एज द फोटोपीरियोडिज्म। तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं उनको दिन की लंबाई छोटी चाहिए, रात की लंबाई लंबी चाहिए, तो वो प्लांट्स जो हैं वो नॉर्मली हमें विंटर्स में नज़र आते हैं। और उसी तरीके से जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनको दिन के टाइम पे हमें उनको दिन के टाइम में ज़्यादा लाइट चाहिए। तो लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब जो गर्मियों में आपके पौधे हैं जो ज़्यादा सर्वाइव गर्मियों में करते हैं, दे आर द लॉन्ग डे प्लांट्स। सो दिस फिनिशेस योर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू।